Welcome to CSR's IAS. Today we shall be talking about Global Biodiversity Framework. It is a deal that has been agreed upon at the end of COP 15 of CBD. We have already talked about the CBD and its COP 15. However, we shall take a look again. We'll also be talking about the latest news and what is 30 by 30 deal. Plus, we shall have a look about the current targets of India that are NDC, nationally determined contributions. Moving forward, just a second. So 188 out of 196 total member countries to CBD has agreed for this deal, which is Global Biodiversity Framework. So here we saw, this is Montreal in Canada, and this is Kunming in China. So China was the host and Montreal was the place where this COP took place. It couldn't take place in the China because of the COVID. Okay, two countries which have not taken part in this deal especially, and the CBD also, are USA, major countries, and Vatican. So this agreement was signed at the end of COP 15 and is being known as Global Biodiversity Framework. We'll see more about it. Let's see, what is this? 1.7 out of 13 million. This is the number of species known. So 1 million is equal to 10 lakh. So 1.75 million कितना हो गया? Around 17.5 lakh. Out of 13 million, that is 1 crore 30 lakh. So this is the total number of approximate species. And this is the number of species yet known to us. Now the threat is that they are being extinct at a very high rate, higher than we are able to identify and conserve them. Acha, is all extinction anthropogenic? No. Extinction is natural also. But due to anthropogenic actions, extinction of these species, of the rare and threatened species, is happening at a very high rate. So यहाँ से हमें दो चीज़ पढ़ने के लिए मिलती हैं. फर्स्ट इज UNFCCC की CBD, इसकी COP 15, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सेकेंड इज द रेड डेटा बुक, बिकॉज बार बार एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज का इसमें जिक्र किया गया है. एंड थर्ड थिंग अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज. Moving ahead, so this global biodiversity framework makes 4 goals for 2050. ये 4 गोल हमें अचीव करने हैं. इसमें मेन गोल जो है वो क्या है? 30% गोल. इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे. एंड 2030 तक के लिए इट आइडेंटिफाइज 23 डिफरेंट टारगेट्स. सो ये 4 गोल क्या क्या है? मेंटेनिंग, जस्ट अ सेकेंड, ये 4 गोल क्या क्या है? मेंटेनिंग इकोसिस्टम इंटेग्रिटी एंड हेल्थ टू हॉल्ट एक्सटिंक्शंस. ये जो वर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. दीज आर नॉट जस्ट रैंडम वर्ड्स. सो मेंटेनिंग इकोसिस्टम इंटेग्रिटी एंड हेल्थ. इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? दैट एवरीथिंग विच कंसिस्ट्स एन इकोसिस्टम should be there. It's not like conserve one species and leave out the other. And what is the health? That all of the species in an ecosystem which are there should function in a healthy way so as to maintain the overall health of the that certain ecosystem. So जब भी हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, इन वर्ड्स को ध्यान से देखना चाहिए. मेंटेनेंस, इंटेग्रिटी, हेल्थ, एंड टू हॉल्ट एक्सटिंक्शंस. सेकंड, दिस इज द सेकंड गोल, मेजरिंग एंड वैल्यूइंग. तो सबसे पहले तो हमें मेजर करना है दैट हाउ मच, एंड सेकंड इज वैल्यूइंग,
So value is always or can be different from measurement. Let's say you have 100 rupees. So 100 rupees might give you a different output in a normal condition, and 100 rupees might give you a different output in some other condition where their value is much more than normal, provided by biodiversity. So bio एंड डाइवर्सिटी, इस वर्ड को हमने देखा था पहले भी, दिस इज बायो प्लस डाइवर्सिटी। तो इसके द्वारा हमें कौन कौन सी सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ये हमें पहले तो मेजर करना है, दूसरा इनको वैल्यू भी करना है। सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे कि सबसे मेजर तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक होना, और क्या है जो भी इससे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्लस देयर इज ए हेरिटेज वैल्यू प्लस फ्यूचर वैल्यू। सो दीज आर वेरियस वैल्यूज, सो इनको वैल्यू करना है, मेजर करना है। दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड गोल। व्हाट इज द थर्ड गोल? शेयरिंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। दीज जेनेटिक रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जुड़ी हुई दो प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने बात भी की थी, दैट वर नगोया एंड कार्टाजीना प्रोटोकॉल। कार्टाजीना इज इन कोलंबिया, नगोया इज इन जापान। So basically they were about equitable sharing of genetic resources and let's say GM crops या फिर एनी बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। सो दिस इज द थर्ड गोल, शेयरिंग मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज एंड डिजिटल सीक्वेंसेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज। तो इनकी भी बात यहाँ पे हुई है, मोस्टली अबाउट ट्राइबल्स। So they have the most knowledge about the biodiversity because they live and inhabit these regions. So इनकी नॉलेज को इकट्ठा करना प्लस क्या, डिजिटल सीक्वेंसिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। फोर्थ गोल इज raising resources for all countries to close a biodiversity finance gap. So this gap is important. Gap is what? The present state and the desired state. So how much is this goal? 700 billion. So this is almost in terms of $1 trillion. चलिए let's move forward to what is this 30 by 30 goal या target. Talking about this, इसमें दो 30s हैं. So one is what? 30%. दूसरा क्या है? 2030. So 30% land and marine areas को, just a second, 30% लैंड एंड मरीन एरियाज को बाय 2030 क्या डिक्लेयर करना है? प्रोटेक्टेड एरियाज। और प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर करने में तीन चीजें लगेंगी, दैट इज रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन, थर्ड इज मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्टोर व्हाट हैज बीन डैमेज्ड और लॉस्ट, कंजर्व व्हाट इज ऑलरेडी देयर, प्लस मैनेज व्हाट हैज बीन कंजर्व्ड, उसको मैनेज भी करना है। सो दिस इज द 30 by 30 डील। और ये सब कब तक करना है? 30% एरिया को कब तक प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना है या प्रोटेक्शन के अंडर लाना है? बाय 2030। इसका करंट स्टेट क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द करंट स्टेट? हमने गोल तो देख लिया। सो इसका करंट स्टेट ये है कि 17% ऑफ द लैंड एरिया and 10% of the marine area are currently protected. अच्छा, दूसरी चीज 30 by 30 के बारे में ही जान लेते हैं। लेट्स से स्टेटमेंट कम्स द 30 by 30 concept originated during the COP 15. So did it origin during the COP 15? The answer is no. It actually originated or was initially discussed in 2019 where in an American journal Science Advances. Plus in 2020 it was launched officially
by a community known as High Ambition Coalition for Nature and People. This 4 is this 4 for Nature and People. एंड 2020 से लेकर 2022 तक वेरियस कंट्रीज हैव स्लोली एग्रीड टू दिस. सो 2022 में इसे COP15 की एक डील के रूप में लॉन्च किया गया है. So 30/30 is not the final goal of this COP. It is one of the targets. Let's move ahead. So इंडिया के करंट टारगेट्स क्या हैं? जो इंडिया के अपडेटेड NDC हैं वो क्या है? तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इंडिया का पहला तो नेट ज़ीरो जो है वो कौन से ईयर तक है ये देख लेते हैं. 2070 तक. ये 2050 तक नहीं है, 2030 तक भी नहीं है, ये है 2070 तक. दूसरा, इंडिया के 3 टारगेट्स हैं मेन. फर्स्ट इज इसकी जो GDP है, ओवरऑल GDP, उसकी एमिशन इंटेंसिटी को 2030 तक बाय 2030 रिड्यूस करना कितने परसेंट से? 45% से. दूसरा क्या है इसका? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, वो इसको किससे करनी है हमें? नॉन फॉसिल फ्यूल से या रिन्यूएबल एनर्जी से. कितनी? 50%, अगेन बाय 2030. और थर्ड गोल क्या है? जो कार्बन सिंक है वो क्रिएट करनी है. कितना? 2.5 से 3.0 गीगाटन CO2 सिंक क्रिएट करना है. कैसे? थ्रू एफोरेस्टेशन प्लस इंक्रीमेंट इन ट्री कवर. So this is all about this video. You can subscribe to our channel and join us on Telegram. This is the name of our channel, CSR's IAS. So see you again and have a very good day.